So before we start the session, I request Principal Ma'am, Dr. Jyoti Shukla Ma'am, kindly introduce our speaker in front of our audience. Madam, I'm audible. Sunanda, madam, I am audible. Mr. Arpan, I'm audible. Yes, ma'am, you're audible, ma'am. Jai Hind, a very good afternoon to dear sir and my dear participants who are present here in today's webinar series on DAPE. Thank you so much to joining us in our series as we are on the day 5th for such a wonderful topics today. Our respected Dr. DUTT AVASTHI sir is going to take. Sir is presently working as a nursing faculty in Jodhpur and he passed his BSc from a very reputed, we can say the father of the nursing field, we can say the Bharati Vidyapith University in 2004. Sir is having his masters from MUHS Nasik in 2008 and completed his PhD in 2013. So by seeing the cadre, sir is very senior for this session, this nursing field. And additionally, he did his diploma in hospital management and he started his second PhD nursing in community health nursing. He was awarded as a gold medalist in his masters and he published the textbook of community health nursing and nutrition under the JP publications and also written chapter 2 in 2 books of community health. His career of nursing and published more than 20 publications in Dutch international and national journals. Moreover, he is editorial board member of more than 8 national and international journals. Sir also cleared IELTS, CGFNS and CLEX examination in 2005 itself, but he decided to serve our country and he is presently working in a government sector in a very reputed institute that is All India Medical Institute, Jodhpur. Sir, on behalf of Samarpan Institute and myself, I welcome you for today's webinar series. Thank you so much for accepting our invitation in a very short period and without any hard part. You said, yes, I will be there. Thank you so much. And I wish that every time we will have you in our future interview. Thank you so much, sir. Now the stage is you. Yes, ma'am. Yeah, I need the share permission from that side because I cannot share. Sir, it's already permitted, sir. So you can share the slides. Okay, also from my side on the window. So there is one arrow mark is there. That Yeah, place you can got it, got it, got it, got it. Okay. So my slides are visible to all of you, I think so. And my body audio. It's visible. And I'm Sir, audible. make it full screen, sir. Yeah, I know. Sure. Thank you. Yeah. Now everything is just okay. Can I start? Yes, sir. Yeah. Please, sir. Thank you, sir. So today it is really my privilege, and I should say thanks to Dr. Jyoti Shukla, Principal from Samarpan Institute of Nursing and Paramedical Science, that she got gave me the opportunity to talk in front of you regarding data collection and analysis reporting, and it is a core hard topic I can say because if you go for any topic, you will really get a difficulty in selecting a problem. So selecting a problem, when we can proceed further, the main problem came or the actual problem arises in data collection, analysis, and reporting.
One thing I would like to ask before that should I speak only in English or can I use some Hindi or it will be mixed? Can you, administrator, can we just give me a hint? Sir, you can use both. Both, because it will be quite Yes, sir, please simple to proceed. understand. Yes, sir. Okay. So first we will start with the data collection when we are starting because I think it is already I must kind of understand that you have sampling and all you have taken the classes for that. And when we come for the data collection, so data collection means what is data and how you can collect. Because in research, if we think about practical point of view से अगर अपन सोचा जाए तो बहुत ही डिफिकल्ट होता है कि डाटा कलेक्शन किस मैथड से करें कहाँ पे जाके करें एंड व्हाट इज द पर्टिकुलर थिंग वो कौन सा प्रोसीजर उसके लिए यूज करें तो अपन डाटा कलेक्शन को समझते हैं डाटा very simple it is a piece of information and data collection the process of collecting evaluating information of data जो डाटा कलेक्शन करना उसको इवेल्युएट करना और उस किस चीज के लिए आपका जो क्वेश्चन था जो रिसर्च में आपने क्वेश्चन रखा था उसके आंसर के लिए द आंसरिंग द क्वेश्चन टू इवेल्युएट द आउटकम एंड द फोरकास्ट ट्रेंड्स एंड प्रोबेबिलिटी कि फ्यूचर में क्या होगा इस चीज के सारे प्रोसेस के लिए जो भी आप पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हो या किसी भी प्रोसेस से किया जाए इट माइट बी कैन बी ऑब्जर्वेशन इट कैन माइट बी कैन बी अ सेल्फ रिपोर्टेड और इट कैन बी अ बायोअवेलेबिलिटी सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी नेसेसरी टू अंडरस्टैंड डाटा. So first and foremost, matter of data collection. It is observation and measurements that provide an information about the phenomena. For any incident, if you are getting any information regarding data, there will be two data sources, primary source and secondary. It is really important to understand ये जानना बहुत जरूरी है कि प्राइमरी डाटा क्या होता है और सेकेंडरी डाटा. प्राइमरी डाटा वो डाटा है जिसको आप खुद जाके कलेक्ट कर रहे हो फर्स्ट हैंड चीज बोलेंगे सबसे इजी समझने में ये होता है कि वो फर्स्ट हैंड चीज है आप उसके लिए सबसे पहले क्या करो खुद जाके जो काम किया जाए अगर आप फील्ड में जा रहे हो लोगों से इंटरव्यू ले रहे हो लोगों के पास जाके उनको क्वेश्चन दे रहे हो ऑब्जर्वेशन कर रहे हो उनका फर्स्ट सोर्स ऑफ डाटा आपका डाटा कौन सा चलाएगा फर्स्ट सोर्स चलाएगा सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा वो है जिसको आपने कलेक्ट नहीं किया है कहीं से इंफॉर्मेशन आपने ली है जो कि पहले किसी ने कलेक्ट की थी जैसे प्राइमरी रिसोर्स जब आप खुद अपने रिसर्च के लिए करते हो प्राइमरी सोर्स बन गया जब किसी का रिव्यू ऑफ लिटरेचर आप देखते हो उससे डाटा लेते हो सेकेंडरी सोर्स बन गया सपोज करो हॉस्पिटल में जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं सीएससी सब सेंटर पे जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं अपने पंचायत पे जितने भी रिपोर्ट्स एंड रिपोर्ट्स होते हैं सारे के रिकॉर्ड से जब आप डाटा लेते हो सेकेंडरी होता है क्योंकि आपने कलेक्ट नहीं हुआ कलेक्ट करने वाला कोई और होता है तो मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन में सोर्सेस का जानना जरूरी है दैट शुड बी प्राइमरी एंड सेकेंडरी जब आप फर्स्ट हैंड डाटा यूज कर रहे हो आप खुद कलेक्ट कर रहे हो सारी चीजें खुद प्रिपरेशन करके जा रहे हो प्राइमरी सोर्स आप कहलाओगे आप अगर किसी और का डाटा यूज कर रहे हो प्राइमरी सोर्स नहीं कहलाओगे सेकेंडरी सोर्स we proceed further with that मेजर टाइप ऑफ डाटा कलेक्शन क्या है कौन कौन से मेजर टाइप होते हैं बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तरीके से दिया होता है रिसर्च में मेन प्रॉब्लम रहती है कि चीजें दी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड तरीके से होती है बट उनका एक्सप्लेनेशन अगर अपन इजीली करें तो इट विल बी सेल्फ रिपोर्ट वो डाटा होता है जिसमें हम अपनी इंफॉर्मेशन खुद देते हैं चाहे वो इंटरव्यू के थ्रू दे या फिर क्वेश्चन के थ्रू सेकेंड इज ऑब्जर्वेशन किसी का ऑब्जर्व करना चाहिए ऑब्जर्वेशन होता है कि जब आप किसी को देख रहे हो कोई आदमी कैसे प्रोसीजर इसमें स्किल यूज होती है जब भी आपको कोई स्किल यूज देखनी होता है कि भाई वो कैसे किस चीज को कितना परफेक्टली कर रहा होता है सिंपल एग्जांपल मैं आपको इसका देता हूँ कि जब आप कोई भी फंडामेंटल लैब में या आपके प्रैक्टिकल में कोई प्रोसीजर कर रहे हो तो ऑब्जर्वेशन मैथड ऑफ डाटा कलेक्शन सेल्फ रिपोर्ट में हमेशा व्यक्ति अपने बारे में कुछ जानकारी देता है नॉलेज असेस करने के लिए सबसे बड़ा अब आता है बायोफिजियोलॉजिकल मेथड बायोफिजियोलॉजिकल मेथड्स में अपन देखेंगे इन विवो और इन विट्रो दो तरीके के मेथड्स की एक अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट किया एक आपके बॉडी से कुछ सैंपल लेके एक्सपेरिमेंट यही सारे डाटा कलेक्शन मेथड्स को अपन डिटेल में जानेंगे इसके लिए अपन आगे बढ़ते हैं सबसे पहले सेल्फ रिपोर्ट इंस्ट्रूमेंट द सेल्फ रिपोर्ट इंस्ट्रूमेंट द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मेथड इज द इंटरव्यू से आप सब लोग करते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप सब लोगों ने इंटरव्यू दिया होता है वाइवा वॉइस अपने प्रैक्टिकल एग्जाम में दिए जाने वाला एक फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंटरव्यू तो इसकी भी कई टाइप होता है द इंटरव्यू इज शेड्यूल्ड व्हेन द क्वेश्चन आर आस्क्ड ओरली either face to face or to the telephone interview
It is a process of communication in which the subject or interview with the information. फेस टू फेस होगा या टेलीफोन पे होगा, डायरेक्टली क्वेश्चनिंग आंसर होगा। जैसे अपन वाइवा वॉइस के एक साइड दोनों साइड में अपन बैठे होते हैं, एग्जाम में लास्ट क्वेश्चन टू सेल्फ रिपोर्ट है, खुद अपनी रिपोर्ट आप बता रहे हो। अब देखते हैं इसका टाइप कितने होते हैं। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, जैसे वर्ड में लिखा हुआ स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर इट इज शेड्यूल्ड क्वेश्चन लिस्ट इन ऑर्डर, सेम क्वेश्चन टू ईच लेवल। अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस कैन बी चेंज, एनकरेज टू टॉक, नो प्रिपरेशन, और इजी कर देते हैं इस चीज को। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू जो होता है वो इस प्रकार का होता है कि वो सारी चीज पहले से ही सेट हो, चाहे उसके क्वेश्चन हो, चाहे उसका शेड्यूल हो, चाहे उसका टाइमिंग। उसका फिक्स टाइमिंग होता है, फिक्स पर्सन होता है, यही लेगा। एक्सपर्ट की यूज होता है, क्वेश्चन की लिस्ट लेगा, 10 क्वेश्चन दिए गए, 10 क्वेश्चन ही पूछोगे, आप फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं कर सकते, और सेम क्वेश्चन हर पार्टिसिपेंट से पूछने पड़ेंगे सेम टाइम पीरियड में। कोई भी चेंज आप नहीं कर सकते जो आपने गिवन टाइम ऑफ पीरियड दिया होगा। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू की अगर अपन बात करें, नॉन स्टैंडर्डाइज, चेंज कर सकते हो क्वेश्चन का फ्रीक्वेंसी। अगर आपको कोई क्वेश्चन लग रहा है कि इसमें और जानकारी ले सकते हैं, यू कैन इनकरेज द टॉक। नो प्री प्लान शेड्यूल, कोई शेड्यूल नहीं होता। हो सकता है 20 मिनट का इंटरव्यू शेड्यूल आपने तब से सोच के रखा हो, 30 मिनट तक चला जाए, 40 मिनट तक चला जाए, because some questions are giving lot of information regarding that, and you have to encourage the person to talk. स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर्ड अगर आपको समझ में आया तो इसके बाद अपन चलते हैं, ये दोनों के बीच में इट इज फ्लेक्सिबल मैथड। इट इज फ्लेक्सिबल मैथड, प्रिपेयर इंटरव्यू गाइड, इन्फॉर्म लिस्ट ऑफ द क्वेश्चन एंड आस्क इन डिफरेंट वे। स्ट्रक्चर पूरा फिक्स होता है, स्ट्रक्चर को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल कर दो कि भाई क्वेश्चन सीक्वेंस चेंज, क्वेश्चन की लिस्ट तो रहेगी बट सीक्वेंस चेंज कर, एंड इन्फॉर्म लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस कैन आस्क इन डिफरेंट वे, दूसरे तरीके से भी। स्ट्रक्चर की बात करो, आप जैसा क्वेश्चन लिखा है वैसे के वैसे पूछना है, यानी स्ट्रक्चर में आप दूसरे तरीके से पूछ सकते हो, आप उनका सीक्वेंस चेंज कर सकते हो, बट आपको सेट ऑफ द क्वेश्चन गाइड तो प्रिपेयर करनी, दोनों के बीच का स्ट्रक्चर अनस्ट्रक्चर और दोनों के इन बिटवीन दैट सेमी स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं इन डेप्थ और फोकस इंटरव्यू। ये दोनों मोस्टली जब यूज होते हैं जब अपन कोई क्वालिटेटिव स्टडी कर, जैसे वर्ड में लिखा है इन डेप्थ इंटरव्यू। इन डेप्थ इंटरव्यू मीन्स आप इंटरव्यू में किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बहुत ज्यादा इन डेप्थ में, इट इज इंटेंसिव टू इन्वेस्टिगेटेड इंटरव्यू दैट चेक द ओपिनियन एंड इमोशन। सिंगल एस्पेक्ट पे हमेशा इन डेप्थ इंटरव्यू करना चाहिए, कभी भी मल्टीपल एस्पेक्ट पे इन डेप्थ इंटरव्यू नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आप एक सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू पे ही जाइए। जैसे मैंने कभी कुछ दिन पहले इन डेप्थ इंटरव्यू जो फोकस इंटरव्यू किए थे, वो किए थे हेजिटेंसी रिगार्डिंग कोरोना वायरस। एक सिंगल वर्ड मैंने पकड़ करके रखा था, हेजिटेंसी। इन डेप्थ इंटरव्यू लोग क्या हेजिटेंसी रखते हैं, क्यों कोरोना वैक्सीनेशन नहीं कराते थे, क्या उनके दिमाग में चल रहा था, इसमें उनकी ओपिनियन और उनके इमोशंस जुड़े। फोकस इंटरव्यू की बात करें, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है, इसमें 8 से 10 मेंबर होते हैं एक साथ में, और ट्रेनी इंटरव्यू होता है, वो उसके ऊपर स्पेसिफिक फिनोमेना के ऊपर क्वेश्चन। एक तरह से ग्रुप इंटरव्यू भी आप बोल सकते हो, बट इसमें फोकस इसलिए बोला जाता है सिंगल एस्पेक्ट पर, एक ही चीज रहेगी। इन डेप्थ इंटरव्यू में सिंगल टू सिंगल 1 by 1 होगा, एक इंटरव्यू और एक इंटरव्यू। दूसरा फोकस इंटरव्यू में ग्रुप हो सकता है जो इंटरव्यू दे रहा हो, इंटरव्यूअर एक ही होता है जो ट्रेंड और गाइड है, वो सिंगल 2 या 4 या 5 क्वेश्चन बना लेता है, उस क्वेश्चन के ऊपर हर पर्सन की ओपिनियन पूछता है कि आपका इसके बारे में क्या राय है, आप इसके बारे में क्या जानते हैं। फोकस। सो we have discussed here regarding the structured interview, unstructured interview, semi-structured interview, in-depth और focus। स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर्ड इसके बीच में तो सेमी स्ट्रक्चर। इन डेप्थ और फोकस के बीच में जो चीज अंतर है वो ये है कि इन डेप्थ जैसे सिंगल एस्पेक्ट में इन डेप्थ इंटरव्यू करना है, बहुत ज्यादा डिटेल में जाके करना है, बट 1 to 1 होगा। फोकस में आपको टॉपिक फोकस रखना है कि उसी वर्ड के बारे में पूछना है, जो पर्टिकुलर टॉपिक रहेगा उसी के बारे में पूछना है, और कई सारे लोग उसमें 8 से 12 मेंबर को आप एक साथ में एक कमरे में रख सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चनरी। क्वेश्चनरी यूज रिसर्च में की जाने वाली सबसे ज्यादा यूज करनी, क्योंकि सेल्फ रिपोर्ट में क्वेश्चनरी का सबसे, हिंदी में अगर अपने बोलते हैं तो बोलते हैं प्रश्नवली बोलते हैं, और क्वेश्चनरी में सेट ऑफ द क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जैसे एग्जाम में आते हैं इसी तरीके के सेट बना लिए जाते हैं रिगार्डिंग टू योर टॉपिक।
आपका जो भी क्वेश्चन का प्रॉब्लम है, जो भी आप, बट चीज याद रखना, इंटरव्यू और क्वेश्चनरी दोनों नॉलेज असेस करने के लिए भी होते हैं, इनसे आप कभी भी प्रैक्टिस असेस नहीं कर। क्वेश्चनरी जब आप पूछ रहे हो, आपने क्वेश्चनरी बना ली, जैसे आपने क्वेश्चनरी बनाया, उसमें देखा कि कम से कम आपने 3 सेट सेक्शन, सेक्शन ए बी सी, सबसे पहले आप जनरल इंफॉर्मेशन कोड पूछते हैं, उसके बाद डेमोग्राफिक कोड, सेकंड में उनका कंटेंट है, इसमें फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, और थर्ड सेक्शन में आप कोई भी अदर टाइप ऑफ क्वेश्चन, जैसे देखा गया लिटरेचर बोल रहा है, इट इज स्ट्रक्चर इंस्ट्रूमेंट कंसिस्ट ऑफ द सीरीज ऑफ द क्वेश्चन प्रिपेयर्ड बाय रिसर्चर टू आस्क द कंप्लीट डाटा वगैरह। आपको जितना भी नॉलेज पूछना है, every component you should include by a question. So you give the objective for that. You give the option for that. Even it may be a dichotomy. Yes or no भी हो सकती है. It's called a questionnaire or self-administered question. कैसे देना है, एप्लीकेशन कैसे करना है, आपने बना लिया क्वेश्चनरी, 20 क्वेश्चन बन लिए, 10 क्वेश्चन डेमोग्राफी से, 20 क्वेश्चन आपके कंटेंट से रिलेटेड हो गए, लोगों के बीच में बांट दीजिए, दे दीजिए, जो भी आपके सैंपल हैं, जो आपने सिलेक्टेड क्राइटेरिया से जो भी सैंपल्स लिए हैं, उनके बीच में दे दीजिए, वो लोग उसको पढ़ेंगे। अब आप हिंट नहीं दे सकते उसमें, आप उनको नहीं बता सकते भाई इसका आंसर ये हो सकता है, ये लिख दीजिए, ये टिक कर दीजिए, नो, दे हैव टू यूज देयर ओन, क्योंकि ये सेल्फ रिपोर्ट है, वो अपना दिमाग लगाएंगे, पढ़ेंगे और अपना, बशर्ते ये उनकी लैंग्वेज में एज पर द कन्वीनियंस फॉर देयर लैंग्वेज। आप इंग्लिश में बना के दोगे, पर्सन को समझ में नहीं आ रही कैसे करेंगे। So when the respondent complete the instrument themselves, usually a paper and pencil format, but occasionally direct on the computer. अभी मोस्टली अपन ज्यादातर अभी पेपर कंप्यूटर यूज नहीं हो रहा, गूगल फॉर्म से अपन ले रहे हैं कि आफ्टर कोरोना मोस्ट ऑफ द सैंपल क्वेश्चनरी वी आर टेकिंग फ्रॉम द गूगल फॉर्म ऑल्सो, बट दे आर नॉट दैट मच ऑथेंटिक। बेटर है आप डायरेक्ट फील्ड में जाइए, डायरेक्ट आपके सेटिंग पर जाइए और पेपर पेंसिल लीजिए। पेपर पेंसिल मैथड होता है कि आपने डायरेक्ट क्वेश्चनरी उनको फिजिकली दिया, उनसे आधा घंटा 1 घंटा उनको दिया, उनके पास में बैठ के उनको पढ़ने को बोला और उनसे डाटा दिया। Still, I will recommend paper and pencil rather than Google Form. Google Form में आपको पता नहीं रहता, इन्फॉर्मेशन भी अगर हाफ इन्फॉर्मेशन भी आई तो अपन कंप्लीट नहीं करा सकते, तो उसका टाइप ओपन फॉर्मेट होता है। ओपन फॉर्मेट में आप डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लीजिए, आप अपने क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिए, कौन सा क्वेश्चन हो सकता है ओपन फॉर्मेट में। ओपन फॉर्मेट में आपके क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके वेग एक्सप्लेनेशन तो, जैसे कि अपन वेग क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट यू थिंक अबाउट इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम, या फिर नर्सिंग के बारे में आपका क्या नजरिया है, व्हाट आर द स्कोप ऑफ द नर्सिंग। ओपन फॉर्मेट है, हर आदमी अपनी अपनी ओपिनियन दे सकता है, कोई लिमिट नहीं है। क्लोज्ड फॉर्मेट, क्लोज फॉर्मेट में क्या होता है, अपन उसको रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, जैसे आपने 4 ऑप्शन दिए, अब उसको आंसर 4 ऑप्शन में से देने, 5वां ऑप्शन में देने। कैफेटेरिया मोस्ट क्लोजली करस्पॉन्ड टू देयर। कैफेटेरिया क्वेश्चन में होता है जब अपन कभी भी किसी चीज के बहुत क्लोजली क्वेश्चन पूछते हैं, भाई ये चीज आपको इसके बारे में क्या सोचना है, अच्छा लगा तो बुरा लगा। रैंक ऑर्डर क्वेश्चन, रैंक ऑर्डर क्वेश्चन कभी भी होते हैं, 1 से 10 तक रैंक दे दी, 1 से 5 तक रैंक दे दी, कि आप अगर उस जगह पर्टिकुलर जगह पे गए और आपने वहां पे ये चीजों को असिस्ट किया, तो इसमें से रैंक दी कि आप उसको कितनी रैंक देंगे। अपन स्टार के रूप में रैंक देते हैं, जैसे हर मूवी को रैंक देते हैं, सेम रेटिंग क्वेश्चन। देन कॉन्टिन्यूइंग yes or no, open dichotomy. Cautionary, you should always keep in your mind क्या मिलता है इंस्ट्रूमेंट, एक सेट ऑफ द क्वेश्चंस का बना हुआ होता है, पेपर पेंसिल मेथड से यूज होता है, सेल्फ रिपोर्ट होती है, नॉलेज के लिए ही असिस्ट करेंगे, चाहे ओपन फॉर्मेट हो, क्लोज फॉर्मेट हो, कैफेटेरिया हो, रैंक ऑर्डर हो या रेटिंग। देन फर्दर विल प्रोसीड फॉर लेटर डे। दिस इज क्वाइट डिफरेंट। जब अपन को किसी की ओपिनियन, एटीट्यूड या उसका बिहेवियर देखना, उसको इंटरप्रेटर देखना। The most widely used scaling technique is Likert system, named after psychologist Francis Likert in 1932 में यूज किया गया था। Likert system consists several declarative items, जिसको अपन स्टेटमेंट बोलते हैं। ये स्टूडेंट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से है। Regarding measurable value, in the respondent express their degree of agreement and disagreement and express their viewpoint on the topic। जब आपको कोई भी चीज का व्यू पॉइंट देखना होता है, जैसे कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सिमुलेशन इन नर्सिंग, मैंने यहीं पे आपको देख लीजिए फॉर्मेट दिए हुए, इसमें 5 पॉइंट रेटिंग स्केल भी होता है, जिसमें 5 पॉइंट रेटिंग स्केल में
स्ट्रॉन्गली एग्री, डिसएग्री, नाइदर एग्री और डिसएग्री, एग्री और स्ट्रॉन्गली। जैसे अपना कोई भी प्रोडक्ट अपन यूज कर, जैसे आप रेस्टोरेंट में गए, वहां की आपको हॉस्पिटलिटी कैसे लगी, उसके साथ में एग्री है, डिसएग्री है, न्यूट्रल है और स्ट्रॉन्गली डिसएग्री। रेलवे का खाना आपको कैसे लगा, फॉर्म ला के दे रहे हो, कुछ स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, वेदर यू आर satisfied with the hospitality of this, whether your food is as per the recommendations, whether it was on time. तो कोई भी आपसे, whether I believe this product was good in value, whatever you have invested, आपने जो भी पैसा उसके लिए फूड के लिए डाला है वो सही है, अकॉर्डिंग टू कॉस्ट इफेक्टिबिलिटी। हर एक एस्पेक्ट आप अपनी डिग्री, स्ट्रॉन्गली एग्री हो, डिसएग्री हो, न्यूट्रल हो, एग्री हो, कोई भी पॉइंट का यूज कर सकते हैं। इट इज बाई योर चॉइस। 5 पॉइंट स्केल और 7 पॉइंट। एक तरफ इसमें जैसे मैंने देखा है, आई बिलीव दिस प्रोडक्ट वॉज गुड एज पर द वैल्यू, ये पूछा, ऐसे आप 10 स्टेटमेंट बना सकते, उनके सामने सारे के सारे आपकी पूछ सकते, एज पर योर टॉपिक, एज पर योर व्यू पॉइंट, उसमें आपको आंसर मिल जाएंगे। टोटल जो भी होता है इसमें दो एस्पेक्ट होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। जब आप पॉजिटिव एस्पेक्ट की तरफ जाते हैं, पॉजिटिव एस्पेक्ट का क्वेश्चन बनाते हैं कि आफ्टर नर्सिंग देयर आर लॉट ऑफ स्कोप फॉर वर्क, आर यू स्ट्रॉन्गली एग्री, आर यू डिसएग्री, आर यू न्यूट्रल, आर यू एग्री और स्ट्रॉन्गली एग्री। इस चीज में स्ट्रॉन्गली एग्री को आप हाईएस्ट मार्क्स दो, स्ट्रॉन्गली डिसएग्री को आप लो। पॉजिटिव स्टेटमेंट की बात, नेगेटिव स्टेटमेंट की जब बात करते हैं तो हमेशा स्ट्रॉन्गली डिसएग्री को क्या नर्सेस ड्रग प्रिस्क्राइब कर सकती हैं, अपन मुझे स्ट्रॉन्गली डिसएग्री नहीं कर सकते। 1947 के एक्ट, डिसएग्री, न्यूट्रल, एग्री, डिसएग्री, whether you are utilizing that product, it is harmful as per the Indian Medical Association। नेगेटिव स्टेटमेंट हमेशा यूज करें। वहां स्ट्रॉन्गली डिसएग्री को 1 पॉइंट देना है, स्ट्रॉन्गली डिसएग्री को हाईएस्ट पॉइंट देना है, स्ट्रॉन्गली एग्री को लो। वर्ष वाइस इन वर्ष उल्टा हो। सीमेंटिक डिफरेंशियल स्केल, सीमेंटिक डिफरेंशियल स्केल में अगर अपन बात करते हैं, डिजाइन टू मेजर कैनोनेटिव मीनिंग, तो वर्ड कैनोनेटिव मीनिंग में अपोजिट वर्ड यूज करते हैं। इट यूज टू मेजर डिजायर, एटीट्यूड टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट। आप किसी भी चीज में गए, आप कोई कॉन्फ्रेंस में गए, आप किसी लेक्चर लेने के लिए गए, वहां पूछा जाएगा दैट इट वाज ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड। जो लाइनिंग लगी हुई है बीच में, आप देख रहे हैं 5 to 6 लाइनिंग लगी हुई है, आपको जितना वो ऑर्गेनाइज लगेगा उतने समीप आप उसमें टिक करोगे, जितना डिसऑर्गेनाइज लगेगा उतने समीप आप इसको टिक करना। Whether you called coffee, it was cold or warm. The cloth which you have wear, it was modern or old fashioned. Whether you have collected data from the secondary data source of information, it was unreliable or real. That are the things which you can, you have a line in between that, and whatever your opinion, whatever your desire is there, according to that, closely you will buy. So what you can collect with that desire, attitude towards a particular object, even in life. Always you can oppose it for it. What is the difference in Likert scale and semantic? Because Likert scale you have 5 point or 7 point, but here you have things. It was very nearer to that or organized. Visual analog scales, we called as a VAR. कई जगह आपने यूज किए होंगे, देखेंगे भी, कई बार अपन अभी यूज भी। पेन मेजरमेंट का सबसे बड़ा विजुअल एनालॉग स्केल यूज किया जाता है। Measure the subjective experience such as pain, fatigue, nausea, and weakness. It is a straight line and with the anchors which labeled with the extreme limit of the sensation. आप देख लीजिए 10 जो दिया है, hurt was, and first is smiling at a no hurt, second is hurt little bit, third is hurt little more. The expression is changing, hurt even more. Then hurt a whole lot, it is hurting. Visual analog, subjects are asked to mark a point on the line corresponding to amount of sensation.
आप इसमें से किसी को भी जो पेन अगर उसको महसूस हो रहा है उसका वो लिखिए। विजुअल मोनोलॉग स्केल कहलाता है। मोस्ट पेन, फटीग, नॉजिया एंड डिस्ने चेक करने के काम। प्रोसीड फॉर द ऑब्जर्वेशन। फर्स्ट नॉलेज अपन ने असेस किया, देन नाउ अपन ने दो चीजों से, लाइकर्ट स्केल से और सिमेंटिक स्केल से अपन ने क्या असेस किया था, और विजुअल एटीट्यूड, objective, then you have assessed their behavior. Now we proceed for the observation. Observation method are thinking for acquiring information for research purpose. अगर आपको किसी की कोई भी स्किल चेक करनी हो, कितना इफेक्टिवली वो वर्क करता है, जैसे कि एक नर्स कितनी इफेक्टिवली सक्शनिंग कर रही है, कैसे असेस कर सकते हैं, टू ऑब्जर्वेशन मैथड। स्किल चेक करने के लिए यूज होगा, नॉलेज चेक नहीं होगी, बिहेवियर चेक नहीं होगा, एटीट्यूड चेक नहीं होगा। टाइप स्ट्रक्चर same like interview, prepare structured tool, observe researcher only special attribute of behavior. सिर्फ स्पेशल एट्रीब्यूट और बिहेवियर चेक हो सकता है अगर स्ट्रक्चर ऑब्जर्वेशन यूज करें। आप किसी भी चीज को यूज नहीं कर सकते, आपको सिंगल चीज, जिसमें एग्जांपल मैंने दिया था सक्शनिंग में, तो आप उसकी सिंगल एट्रीब्यूट अगर स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं तो आप ये देखोगे द टाइम ऑफ द इंसर्शन ऑफ द सक्शन कैथेटर इनटू द टैक्सोनॉमी and the time of the reliever. So how much time he is utilizing or he is utilizing during suctioning. इसमें सेकंड एस्पेक्ट ये रहता है कि सर्जिकल मेंटेन सर्जिकल सॉरी एस्पेक्ट मेंटेन हो रहा है या नहीं हो रहा, स्टेराइल टेक्निक यूज हो रही है नहीं हो रही, वो नहीं करना है। स्पेशलिटी है सर्जिकल उसका यूज कर रहा है प्लग्स का या फिर स्टेराइल टेक्निक यूज कर रहा है, ये देख लीजिए, या फिर स्ट्रक्चरिंग का टाइम देख लीजिए। सिंगल एक्टिविटी क्या फिर तो स्ट्रक्चरिंग, उसके लिए अपने को रेटिंग स्केल बनानी पड़ती है, चेकलिस्ट बना। सी वन वर्ड अनस्ट्रक्चर्ड मिनिमल स्ट्रक्चर होता है, यूजफुल टू कंप्लीट नॉन स्पेसिफिक, और दूसरी चीजें भी आप उसमें देख सकते हो और नोट डाउन कर सकते हो, जैसे फील्ड नोट्स हो गए, एनेक्डोट्स हो, फील्ड डायरी हुई, वीडियो रिकॉर्ड। फील्ड नोट्स जब बनते हैं जब अपन कोई इंसिडेंट को कवर करते हैं, फील्ड नोट्स कोई इंसिडेंट हुआ उसको अपन ने कवर किया। एनेक्डोट एक ही स्टाफ नर्स कोई पर्टिकुलर पेशेंट असाइन है, हाउ शी इज परफॉर्मिंग देयर ड्यूटी, उसमें सक्शनिंग वो कर रही है तो उसमें कौन सा मेथड में कहाँ कौन सी चीज लेकिन रह गई है, या तो उसने स्टेराइल टेक्निक यूज नहीं की, सक्शन एक्सेस किया है, सक्शन का टाइमिंग लेस रखा है, और टेक्निक्स उसने गलत यूज किया, फील्ड नोट्स में लिख सकते हैं। एनेक्डोट्स किसी भी इंसिडेंट को रिपोर्ट करने के लिए एनेक्डोट्स बनते हैं। फील्ड डायरी, फील्ड डायरी अपन किसी भी चीज के लिए डायरी में नोट डाउन करते हैं कि ये चीज अपनी इस टाइम पे थी। Participants observation. In this, the observer actively participant in ongoing activity and may live with them participants. दो तरीके के हो गए, स्ट्रक्चर अनस्ट्रक्चर, देन पार्टिसिपेंट एंड नॉन पार्टिसिपेंट। बहुत इजी चीज रही है, जिस ऑब्जर्वेशन में आप खुद पार्टिसिपेट हो, लाइवली वहां हो, खुद जाके देख रहे हो, जैसे प्रैक्टिकल एग्जामिनर के लिए बैक साइड में तो खुद एग्जामिनर वहां आता है आपका एग्जाम लेने के लिए या डेमोस्ट्रेशन देने के लिए, टीचर खुद सामने आकर डेमोस्ट्रेशन देखती है, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है। दूसरे जब अपन सिटी स्कैन एमआरआई कर रहे होते, दूसरे रूम में बैठ के आदमी देख रहे हो, तो दोनों चीजें हो सकती है पार्टिसिपेंट्स में, कि जिन लोगों को आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हो उनको पता ही नहीं है कि आपको ऑब्जर्व किया जा रहा है, ट्रू वैल्यू सामने आएगी, ट्रू स्किल सामने आएगी। पर अगर उनको पता है कि ऑब्जर्व किया जा रहा है, दे विल more curious or more conscious regarding that. नॉट पार्टिसिपेशन के ऑब्जर्वेशन के भी अपने अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, प्रोज एंड कॉन्स है। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के भी अपने अपने। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, पर्सन उनके बीच में रह रहा है, लोग कॉन्शियस हो जाएंगे किसी चीज के बारे में, क्योंकि नॉन पार्टिसिपेंट तो उनको पता ही नहीं रहता कि भाई कहाँ से हमको ऑब्जर्व किया जा रहा है, डिजिटल कैमरे से जैसे उनको ऑब्जर्व किया जा रहा है, या किसी दूसरे रूम में ब्लैक रूम में बैठ कर उनको ऑब्जर्व किया जा रहा है, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। रेटिंग स्केल की बात करते हैं, सेट ऑफ द ओपिनियन अलग से है, रेटिंग स्केल मोस्टली यूज की जाती है, तीन टाइप ऑफ रेटिंग स्केल होते हैं, ग्राफिकल, डिस्क्रिप्टिव। सेट ऑफ द ओपिनियन चेक करनी है, वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक ओपिनियन। 3 पॉइंट, 5 पॉइंट और 7 पॉइंट रेटिंग स्केल होते हैं।
सेम विजुअल एनालॉग की तरह, बट नंबरों में डल जाएगी, डिस्क्रिप्टिव हो जाएगी, आपकी ओपिनियन चेक करनी है। इन दिस परफॉर्मेंस प्रिंटेड हॉरिजॉन्टली इन वेरियस पॉइंट्स, मैंने एग्जांपल दिए हुए हैं, ग्राफिकल, डिस्क्रिप्टिव और न्यूमेरिकल, तीनों टाइप। ये पहले न्यूमेरिकल टाइप, किसी पर्सन को पेन होना, विजुअल एनालॉग यूज नहीं कर रहे हो आप, रेटिंग स्केल यूज कर रहे हो। रेटिंग स्केल में कौन सी रेटिंग स्केल यूज कर रहे हो आप? न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल। सबसे पहले जो 1 2 3 4 है न्यूमेरिकल रेटिंग। अगर उसको माइल्ड पेन है, पहले ही बता दीजिए 1 2 3 के अंदर डालना है। मॉडरेट पेन है 4 5 6 के अंदर डालना। सीवियर पेन है 7 8 9 10। ग्राफिकल स्केल ऑफ रेटिंग, ग्राफिकल रेटिंग अब यहाँ देख लीजिए आप। परफॉर्मेंस लेवल एंड वर्क टाइमिंग, अटेंडेंस को लेकर, बिहेवियर को लेकर, सिंसियरिटी को लेकर एंड डिपेंडेबिलिटी। स्केल बना दिया, पुअर, फेयरली गुड, गुड और एक्सीलेंट, वहां टिक करने पड़ रहे। ग्राफिकल स्केल रेटिंग यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव में लिख दिया जाता है, स्टेटमेंट्स नहीं है लाइकर्ट स्केल की तरह। एक क्वेश्चन है, इन विच डिस्क्रिप्टिव फ्रेज और टर्म्स असाइन ईच फ्रेज rather to enter appropriate phase of each name and indicate judgment the cause। किसी व्यक्ति के बारे में, किसी चीज के बारे में पूछा जा रहा है, आपकी क्या ओपिनियन है, आपकी क्या सलाह है किसी व्यक्तिगत स्थिति के बारे में, तो वो बता सकते हैं। ए इज एक्सीलेंट, बी इज गुड, सी इज एवरेज, डी इज बिलो एवरेज और सी इज पुअर। These all three types of the rating scale when you are checking any opinion or any attitude। कोई भी परसीव्ड आइडियाज के लिए अपन यूज कर सकते हैं, फ्यूचर पर्सपेक्टिव के लिए अपन यूज कर सकते हैं कि क्या ओपिनियन किस चीज के बारे में रहेगी, वो चीज के बारे में। चेकलिस्ट ऑब्जर्वेशन के साथ में अगर आप किसी चीज को दे रहे हो तो चेकलिस्ट हमेशा उसके साथ रहेगी। इट इज कंसिस्ट ऑफ लिस्टिंग ऑफ स्टेप। अब अपन यहाँ बात करते हैं एक टीचर को आपकी हैंड वॉशिंग का डेमोन्स्ट्रेशन करें, किन किन एस्पेक्ट पे वो आपको ऑब्जर्व करे, ये बहुत जरूरी होता है, नहीं तो वो सही इवेल्युएशन नहीं होता। तो एटलीस्ट उस टीचर के पास में, उस गाइड के पास में सीरीज ऑफ स्टेप्स होनी चाहिए। ये चीजें ये करे, परफॉर्म करेगी, परफॉर्म की तो यस, नहीं करी तो नहीं, देन शी कैन इवेल्युएट दैट पर्टिकुलर। आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि बिफोर टचिंग अ बेबी इन एन आईसीयू, whether the nurses are doing hand washing or not, or whether they are using a right steps or not, whether they are using a medical hand washing or surgical hand washing in a right steps। To prepare a list of the expected item of performance, यहाँ आपको मेंशन करने होते हैं कि भाई कैसे कैसे आपको कौन कौन से एट्रीब्यूट्स में उनको चेक करना है। जैसे कि ये देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्यूब फीडिंग, तो मैंने यहाँ पे एक चेकलिस्ट का एग्जांपल दिया हुआ है। एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट, यूज द स्टेथोस्कोप टू असेस द बॉडी। ये टीचर के हाथ में रहेगी, आपके हाथ में नहीं रहेगी। आप परफॉर्मेंस कर रहे हो, आप किसी प्रोसीजर को कर रहे हो, ट्यूब फीडिंग का प्रोसीजर कर रहे हो, ये सारे एस्पेक्ट पे आपको टीचर चेक करेंगे। अगर आपने सारे एस्पेक्ट किए हुए यस लिखेंगे और नहीं किए हुए नहीं करेंगे। आपके टोटल 11 मार्क्स हैं, टोटल आप इसको लगा सकते हैं। 11 मार्क्स में से स्कोर ऑफ ग्रेड 11 मार्क्स टोटल रह जाएगा। अगर आपने किया तो 1 मार्क, नहीं किया तो 0, टोटल कंपाइलेशन हो जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन, किसी भी डेमोन्स्ट्रेशन को, किसी भी ऑब्जर्वेशन को चेकलिस्ट के थ्रू अपन चेक मार्क्स है। Next, we will proceed for the biophysical measures. Biophysical measures can be classified in, मैंने डिस्कस किया था, when you are using oxygen saturation, बॉडी को टच करते हुए आपने प्रोब को लगाया है। बीपी जब चेक कर रहे हो, आपने कफ उसकी बॉडी पे बांधा हुआ है, बॉडी का टेम्परेचर यूज कर रहे हो, तो टेम्परेचर की प्रोब जो है उनकी बॉडी के टच में है। इन विवो मेजरमेंट्स कहलाएंगे, इसमें बॉडी डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है। इन विट्रो मेजरमेंट्स वेयर द परफॉर्मेंस आउटसाइड द ऑर्गेनिज्म बॉडी इन केस ऑफ मेजरिंग सीरम पोटेशियम कॉन्सेंट्रेशन। आपने पर्सन का ब्लड ले लिया, स्पूटम ले लिया, और कोई दूसरी कोई भी बॉडी का कोई पर्टिकुलर सैंपल लिया और उसको बाहर आप मशीन में चेक कर रहे हो, इन विट्रो मेजरमेंट कहलाएगा। नर्सिंग में अगर आप पर्टिकुलर कोई भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, ब्लड सैंपल यूज कर रहे हो, किसी का भी ब्लड शुगर लेवल चेक कर रहे हो, हीमोग्लोबिन यूज कर रहे हो, इन विट्रो में आएगा। अगर आप बीपी चेक कर रहे हो, टेम्परेचर चेक कर रहे हो, ऑक्सीजन सेचुरेशन चेक कर रहे हो, तो वो सारा का सारा इन विवो मेजरमेंट में। इन विवो में बॉडी इज डायरेक्टली इन्वॉल्व, बट they are not taking any sample from your body. In vitro, they are taking the sample outside. They are performing the test outside of it.
क्यू मेथोडोलॉजी, इट इज सम और अदर, अगर बहुत डिटेल में जाएंगे तो क्यू मेथोडोलॉजी भी यूज होती है, शॉर्ट ऑफ टाइमिंग्स होती है इन सबके अंदर, विल नॉट गो इन दैट मच डिटेल फॉर दैट, बिकॉज क्यू मेथोडोलॉजी की शॉर्ट प्रोसीजर है जो कि डेक कार्ड्स के रूप में यूज होता है, और एक कोई भी स्टैटिकल किसी भी सीक्वेंस को साइकोमेट्री कंसेप्ट को यूज करने के बाद। प्रोजेक्टिव टेक्निक, कभी भी अपन किसी भी चीज के लिए प्रोजेक्टिव टेक्निक यूज होती है, वी एनी टू टास्क रेस्पोंडेंट वांट टू ए डेली इंटरव्यू पार्टिसिपेंट, किसी की भी ओपिनियन पूछनी है, किसी को भी एक पर्टिकुलर अनस्ट्रक्चर्ड स्टिमुलाई दे दिया जाए, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि इफ द पर्सन विल थिंक अबाउट द लॉइन, एक प्रोजेक्टिव टेक्निक में क्या होता है, पर्सन को बोल दिया जाता है कि टेल मी अबाउट व्हाट यू थिंक अबाउट लॉइन और टाइगर, what the things will come in your mind, the tiger will be strong, he will be stay wild, you cannot be tamed. But when we give as an example, what you think about a rabbit, it will be fast, swift, agile, but not strong. तो पॉजिटिव टेक्निक में हमेशा उनको प्रोस्पेक्टिव सोचने के लिए दिया जाता है, उसमें उनको एक स्टिमुलाई दे दो, स्टिमुलाई का मतलब कोई भी एक वर्ड पकड़ा दिया उनको, इंडियन क्रिकेट टीम, उसके बारे में क्या सोचते हैं, वो पॉइंट बोलते हैं ये चीज आप बताइए, वो शॉर्ट सीखने का पॉजिटिव है। तो एक्सप्लोर द परसेप्शन, ओपिनियन एंड बिलीफ के लिए अपन यूज होता है। इसमें क्या होता है, पर्टिकुलर सिनेरियो दे दिया जाता है रिटन और पिक्टोरियल फॉर्म में, आप उसकी खुद उसकी पिक्चर्स वो बनाए, आपको पॉइंट्स दे दिए जाएंगे, भाई ये सारे पॉइंट्स के अपने आपको एक सिनेरियो है, आप इसके बारे में अपना खुद का परसेप्शन ओपिनियन, जैसे अपन मैं आपको सिंपल एग्जांपल दे दूं कि मैं आपको ये 3 एक्टर एक्ट्रेस दे रहा हूँ विटनेस के रूप में, आप इसके ऊपर एक स्टोरी लिख दीजिए या कोई मूवी बना, with your own perception, with your own opinion, with your own belief और एटीट्यूड के हिसाब से आप उनके हिसाब, जैसे एक्टर रहेंगे, जैसे उनकी पर्सनैलिटी रहेगी, आप उसी हिसाब से उनकी मूवीज बना देंगे, स्टोरी लिख दोगे विटनेस के रूप में। तो क्यू मेथोडोलॉजी और प्रोजेक्टिव टेक्निक और विटनेस लेस कॉमनली यूज। Here we will again revise to take a time with that. So macro data collection, we have utilized self-report, observation, and biophysics. So 3 major chapters are there. In that, interview is a self-report, questionnaire is a self-report, Likert skill to check the behavior, attitude pattern. Inventory also be the same when you are using any behavior, any perception with that. Visual analog when you are checking any segment of particular pain assessment, fatigue, and nausea. Then observation to check for the skill. Checking skill for the opinion, checking the skill or attitude. Checklist, it is helpful with the observation to check any demonstration of part of this. Very physical on the body, off the body. To methodology, projective technique, even. Here we will finish regarding all of your data collection methods. Now we proceed for analysis. Analysis is quite difficult chapter because I know that once the time this is quite difficult, but I will make it easy as much as possible, because when you are doing an analysis, it is very difficult to organize the data. You have done a data collection in any type of now, चाहे इंटरव्यू से कलेक्ट किया, चाहे आपने उसको सेल्फ रिपोर्ट से, क्वेश्चनर से कलेक्ट किया, चाहे ऑब्जर्वेशन से कलेक्ट। तो मैंने क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस आप कर रहे हो, उसके कुछ स्टेप्स होते हैं, फिर कुछ फेज होते हैं। फर्स्ट फेज प्री एनालिसिस फेज, एनालिसिस के पहले का फेज प्री एनालिसिस, कलेक्ट द डाटा एंड एनकोड, एंटर द एंड क्रिएट ए डॉक फाइल, आप सबसे पहले डाटा कलेक्ट करोगे, फिर जो चीज आपसे संबंधित है पूरे रूप से आई हुई है उनको इनकोडिंग करोगे। जैसे इनकोडिंग का मतलब होता है कि जैसे मेल, अब मेल को क्वांटिटेटिव डाटा में नहीं लिख सकते हैं, तो उसके लिए 1 नंबर देंगे और फीमेल को 2 नंबर, इस तरीके से आप एंटर करके डॉग फाइल बनाओ। प्रिलिमिनरी फेज असेसमेंट, इसमें आप डाटा की क्वालिटी देखते हो, बाइस असेस करते हो। आपकी डाटा की क्वालिटी मतलब उस पर डिपेंड करेगी कितना ट्रूली आपने डाटा कलेक्ट किया है और सारे ऑप्शंस भरे गए या नहीं भरे गए, या जो भी आपने क्वेश्चनरी यूज किए सब लोगों ने बराबर आंसर दिए कि नहीं दिए, कई लोगों ने 2 आंसर तो नहीं दिए, फिर आप उसको बाइस चेक करोगे कि कहीं कोई मैनिपुलेशन तो उसके अंदर है। प्री एनालिसिस फेज, देन प्रिलिमिनरी फेज, बोथ आर इंपॉर्टेंट। देन द प्रिलिमिनरी फेज यू विल रिकॉर्ड ऑल द डाटा, जो डाटा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होते हैं उनको हमेशा कोडिंग की जाती है। और डेमोग्राफिक प्रोफाइल में हर इसको, क्योंकि मेल फीमेल को आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते हो, 1 और 2 कोडिंग दोगे, लेवल ऑफ एजुकेशन को आप कोडिंग दोगे, ऑक्यूपेशन को, कोडिंग विदाउट कोडिंग यू कैन नॉट चेक द इन्फ्रेंसेस। देन एड्रेस द मिसिंग वैल्यूज, अगर कई लोगों ने आंसर नहीं दिए हैं
या फिर आपको उनके आंसर ही नहीं है, अपने को उनको लिखना पड़ता है कि भाई इसके बारे में नहीं पता है, अननोन। देन यू विल कंस्ट्रक्ट द स्केल। कौन से स्केल से आपको डाटा कलेक्ट, वो डाटा का एनालिसिस करना है, देन परफॉर्म अदर पेरिफेरल। देन वेरी इंपॉर्टेंट, द प्रिंसिपल एनालिसिस। द प्रिंसिपल एनालिसिस हमेशा अपन यूज करते हैं डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। जब भी आप डेमोग्राफिक प्रोफाइल को एक्सप्लेन कर रहे हो, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस का यूज होगा। सेंट्रल टेंडेंसी यूज होती है, मीन मोड मीडियन। मीन मोड एंड मीडियन आर द पार्ट ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी टू यूज फॉर द डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। बाइवेरिएट एनालिसिस, जैसे लिखा हुआ बाइवेरिएट मतलब दो चीजों के बीच में रिलेशनशिप है, किसी भी चीज का इंपैक्ट देखना है, इंटरवेंशन का रिजल्ट देखना है, मल्टीवेरिएट जब आपको एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, कितने डिपेंडेंट वेरिएबल्स का इंपैक्ट अगर चेक करना, मल्टीपल वेरिएबल्स अगर आपको देखने हैं, या दो वेरिएबल्स देखने हैं, बाइवेरिएट एनालिसिस जो होगा। एक से दो से ज्यादा वेरिएबल्स जहां आपको चेक करने होते हैं, मल्टीवेरिएट। डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस सबसे इजीली अपन यूज होता है जब भी अपने को कोई भी डिस्क्राइब चीज करनी होती है, अपन मीन का यूज करते हैं। मीन एज ये सारे जितने 100 लोगों को डाटा कलेक्ट किया, सबके एज को लिया, सबके एज में आपने उसका मीन निकाल लिया, आप मीन एज दे सकते हो। एक कॉमन कंस्ट्रक्ट आपके पास ना रहता डिस्क्रिप्टिव। बाइवेरिएट में 2, देन मल्टीवेरिएट में आप एक से दो से ज्यादा भी वेरिएबल। इंटरप्रेटिंग, व्हेन यू विल गिव द इंट्रीगेट एंड यू विल डू द सिंथेसिस। एनालिसिस ऑफ द क्वालिटेटिव डाटा, अपन वहां बात की थी क्वांटिटेटिव डाटा की। क्वांटिटेटिव मींस ऑल थिंग्स इन न्यूमेरिकल फॉर्म, बट हियर ऑल थिंग्स आर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। क्वालिटेटिव है बिहेवियर कल्पित करते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज अ कॉम्प्रिहेंसिव, टू अंडरस्टैंड समथिंग कंप्लीटली, वेरी इंपॉर्टेंट इन क्वालिटेटिव डाटा। तो डाटा कलेक्ट हो जाए उसको बार बार पढ़ना पड़ता है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने। देन सिंथेसाइजिंग, टू ब्रिंग द रिजल्ट एंड एग्जामिन द फाइंडिंग टुगेदर। तो आप चीज को 5, 6, 7 बार पढ़ लेते हो, जो लोगों ने जो बताया, लोगों ने जो आपको डाटा दिया, आप एक कंक्लूजन पे आ जाते हो, आप एक चीज पर जाते हो, इस चीज में हर व्यक्ति ये चीज कहना चाह रहा है, पता चलता है। देन थ्योराइजिंग, थ्योराइजिंग एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क हो, डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स में अपन बांट, इसको अपन थ्योराइजिंग बोलते हैं। थ्योराइजिंग में थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क यूज होते हैं, थ्योरीज और सब थ्योरीज बनती है। देन द रिकंसेप्चुलाइजेशन, conceptualization abstracts the fact finding and meaning। फिर अपने को किस चीज के, जैसे मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, हेजिटेंसी रिगार्डिंग द वैक्सीन, स्पेशली कोरोना वैक्सीन। टोटल 4 ग्रुप से ऊपर किया गया था, टोटल 35 सैंपल थे। डाटा जो कलेक्ट हुआ हर ग्रुप के साथ में बार बार पढ़ा गया, उसको कॉम्प्रिहेंसिव किया गया। देन हमने देखा कि ये लोग इन 4 एस्पेक्ट पे बात कर रहे हैं, जो अपन ने क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन सिंथेसाइजिंग करने के बाद, वो 4 क्वेश्चन के बेस पे हमने उनका थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बना या थीम बना लिया, इसको थीमेटिक एनालिसिस भी बोल सकते हो, थीम बना लिया। हेजिटेंसी की थीम क्या हो सकती है, सोशो डेमोग्राफिक भी हो सकती है, सोशो कल्चरल भी हो सकती है, इमोशनल भी हो सकती है, एंड लाइफ थ्रेटनिंग भी। थ्योराइजिंग की उनका थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क पे क्या थीम बनाए, थीम की सब थीम भी बनाए। अब उनमें रिकॉन्स्टलाइजेशन करना, एग्जैक्ट साइन और मीनिंग उसमें उसके लिखने होते हैं, क्या क्या लोगों ने उस पर्टिकुलर थीम के अंडर में। I know that it's quite difficult to understand when you are studying first time. So, but when you do it practically, it's quite easy. So, how you will proceed further? Descriptive study sample characteristics. First, you should know what are the sample characteristics. You set in an order and do the following. Data summarization and compilation sheet. Every verbatim, word use कर रहा हूँ, verbatim हमेशा word use होता है कब, तो qualitative data हो, जो लोगों ने बोला सेम टू सेम लिखना पड़ता है और उसको समराइज करके कंपाइलेशन शीट में, क्योंकि डाटा बहुत वेग होता है, फर्दर समराइजेशन करना पड़ता है नैरेटिव, मैट्रिक्स एंड फिगर्स के रूप। देन कंक्लूजन एंड वेरीफाइंग एंड रिपोर्टिंग। नाउ द डाटा एनालिसिस। डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में अपन मोस्टली यूज कर चुके हैं, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यूज करते हैं, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स यूज कर रहे हैं। वर्ड याद रखिए, डिस्क्रिप्टिव, सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्शन यूज होंगे। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स जब आप यूज कर रहे हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए या जनरलाइजेशन के लिए।
डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स जब अपन यूज करते हैं मीन मोड मीडियन, इसको अपन सेंट्रल टेंडेंसी या एवरेजेस के नाम से जानते हैं। और मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन जब आप यूज कर रहे हो, स्टैंडर्ड डिविएशन, रेंज, मीन डिविएशन और क्वालिटाइव डिविएशन और सेमी क्वालिटाइव। मोस्टली एमएससी फिल एमएससी और बीएससी रिसर्च में अपन डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस और इन्फ्लुएंशियल एनालिसिस यूज करते हैं। डेमोग्राफिक प्रोफाइल को डिस्क्राइब करना होता है, मीन मोड मीडियन फ्रीक्वेंसी में अपन परसेंटेज में ही डाल देते हैं। फर्स्ट टेबल कभी भी आप चैप्टर में देखोगे, चैप्टर ए सेक्शन में फर्स्ट टेबल डिस्क्रिप्टिव ऑफ डेमोग्राफिक वेरिएबल्स, अपन फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज नहीं कर सकते। और जगह सब डिवाइड करना है, तो मीन मोड मीडियन में उनको डाल सकते। मीन इज द मोस्ट कॉमन। और अगर डिटेल में जाता है, अपन उसका सब डिविएशन निकाले, एसडी निकाल, हाउ मच वेरिएबिलिटी इज देयर, हाउ मच डिस्पर्सन इज देयर, स्टैंडर्ड डिविएशन से बेस फर्दर। और अगर जाए, अगर आपको मीन डिफरेंसेस देखने हैं, वो वेरिएबल्स के अंदर अंतर देखना है। जैसे कि मैंने किसी पर्सन को इम्पैक्ट देखना है कि म्यूजिकल थेरेपी पे ब्लड प्रेशर का क्या इम्पैक्ट रहेगा। ब्लड प्रेशर म्यूजिक का, किसी पर्सन को हाई ब्लड प्रेशर है, म्यूजिकल थेरेपी दी जाए तो उसका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। तो पहले का ब्लड प्रेशर और बाद का ब्लड प्रेशर, म्यूजिक थेरेपी इन बिटवीन जो अपन ने उसको दिया इंटरवेंशन के रूप में, दोनों के में डिफरेंस आना चाहिए। डिफरेंस किससे मेजर होगा? ठीक है, अब यहाँ देखते हैं टेस्टिंग और मेन डिफरेंसेस में दो टेस्ट मोस्टली देखे जाते हैं, पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक। अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन है, दिमाग में चीज रख लीजिए, इफ योर पॉपुलेशन इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, you should use the parametric. If it is not distributed normally, you should use a non-parametric or contribution coefficient called as a free test. तो कई लोगों के माइंड में होता है पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होता है, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होता है। पैरामेट्रिक सीधा सीधा पता होता है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन अगर पॉपुलेशन है एज पर द, नॉन पैरामेट्रिक अगर पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अपन ने अब जस्ट डिस्कस किया, अनपेयर टी टेस्ट और पेयर टी। अनपेयर टी टेस्ट अगर दोनों पेयर अलग अलग हैं, दो अलग अलग लोगों वेरिएबल्स के बीच में अगर टेस्ट कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो, तो अपर अनपेयर टी टेस्ट यूज करेंगे। इट इज यूज्ड टू टू इंडिपेंडेंट ग्रुप, एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल, दोनों अलग अलग ग्रुप है। बट सैंपल साइज लेस देन 30 और मोर देन सैंपल साइज, अगर सैंपल साइज लेस देन 30 है तो मोर देन दिस अगर वन जेड टेस्ट यूज। पेयर टी टेस्ट जब यूज करते हैं तो सेम पीपल आप पहले भी यूज कर रहे हो, सेम उसके बाद में। अगर आपने बीपी मेजरमेंट में इम्पैक्ट देखा है म्यूजिकल थेरेपी का, तो सेम लोगों को आपने पहले बीपी चेक किया है, म्यूजिकल थेरेपी दी है और फिर दोबारा उसका बीपी चेक किया। पेयर टी टेस्ट अगर इसी में अगर नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, ये कब यूज होगा? पैरामेट्रिक में जब पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। नॉन पैरामेट्रिक मैन विटनी टेस्ट यूज कर सकते हो, विल्किंसन सैनिटरी टेस्ट यूज कर सकते हैं। I will not go in detail in that test. Just keep in your mind to get a knowledge regarding only analysis. Then testing of mean differences, ANOVA से यूज कर सकते हो, वन वे ANOVA सेटिंग। जब एक से ज्यादा वेरिएबल्स में आपको चेक करना है, वहां तो अपन ने दो लोगों के बीच में चेक किया था, यहाँ एक से अधिक हो गए, दो से अधिक हो गए, तीन ग्रुप हो गए, तीन ग्रुप में एक साथ में आपको चेक करना है, तीन ग्रुप के साथ। वहां कंट्रोल और एक्सपेरिमेंटल दो ही ग्रुप थे, जब प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट में एक ही ग्रुप था। यहाँ तीन से ज्यादा ग्रुप, तीन ग्रुप हो गए, तीन से ज्यादा ग्रुप हो गए, ANOVA एनालिसिस ऑफ वेरिएंसेस। टू वे ANOVA, two-way ANOVA when there are three or more measures in same part. Relationship between one category independent variable और continuous dependent variable। अगर continuous dependent variable बहुत ज्यादा है, अगर एक पर्सन की बॉडी के ऊपर अल्कोहलिज्म का भी इम्पैक्ट देखना है, टोबैको च्यूइंग का भी इम्पैक्ट देखना है, सिगरेट स्मोकिंग का भी इम्पैक्ट देखना है, ANOVA यूज होगा, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस यूज होगा। नॉन पैरामेट्रिक में अगर देखेंगे तो क्रुस्कल वैलिस टेस्ट, पावर एनालिसिस। अगर किसी भी चीज में अगर टाइप 2 एरर को, अब बहुत ज्यादा डिटेल में अपन यहाँ नहीं जाएंगे, टाइप 2 एरर को चेक करना होता है, पावर एनालिसिस होती है, उसमें सैंपल साइज, इफेक्ट साइज, पावर और सिग्निफिकेंट क्राइटेरियन का होना जरूरी है। बट दीज आर द वेरी मच डिटेल्ड सेक्शंस व्हिच इज ओनली नेसेसरी फॉर एमएससी एंड पीएचडी कोर्स। अगर हम टेस्ट इन डिफरेंट प्रोपोर्शंस यूज कर रहे हैं, मोस्टली यूज किया था मैंने काई स्क्वायर को इसलिए लिया कि जब भी आपको एसोसिएशन निकालना होता है काई स्क्वायर यूज होता है, बट ओनली थिंग व्हेन इट इज अ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा।
नहीं तो अगर सैंपल साइज लेस देन 30 है और कोई भी फ्रीक्वेंसी 5 से नीचे कम नहीं होनी चाहिए, अगर कोई भी फ्रीक्वेंसी लेस देन 5 है तो उसका टाइप का टेस्ट यूज नहीं कर सकते, फिशर एक्सेप्ट टेस्ट। प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट यूज कर रहे हो, उसके अंदर 2 पेयर में मैकनेवर टेस्ट यूज करो। जेड टेस्ट सेकंड फॉरमोस्ट, क्योंकि मोस्टली जो अपन डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस इन्फ्लुएंशियल पे आते हैं, इन्फ्लुएंशियल पे जैसे ही हाइपोथेसिस चेक करने आते हैं, मोस्टली नर्सिंग में 2 ही टेस्ट यूज करते हैं, टी टेस्ट, जेड टेस्ट। एसोसिएशन देखना है, खाई स्क्वायर जेड टेस्ट जो यूज करता है कंपेयर डिफरेंसेस बिटवीन पॉपुलेशन मीन एंड सैंपल मीन। Sign test, alternative of t-test, and median test for hypothesis when two independent samples have drawn from the equal mean. Repova mostly used for the multiple regression and allowed researchers to conduct confounding, बहुत rarely used. Now we'll go on a third and last question, research report, how to write a research report. So it is very important, जब आपने analysis कर लिया, research report देख ली, अब उसको लिखना कैसे, हाउ टू ऑर्गेनाइज रिसर्च। उसके लिए सबसे पहले आपको ये चीज देखनी होती है कि रिसर्च रिपोर्ट एक कंपाइलेशन होता है आपके होल वर्क। देन व्हाट यू शुड डू, a report is a complete study that report an investigation or exploration of the problem, identify a question to be addressed and include the data collection, analyze and interpret by the research। अब पूरी की पूरी थीसिस कैसे बनाओ, लेट्स सी कितने टाइप की रिसर्च रिपोर्ट होती है। फर्स्ट स्टार्ट करें समरी रिपोर्ट जो आप बनाते हैं, एल्गोरिथमिक रिपोर्ट एक बॉक्सेस के रूप में, एल्गोरिथम्स के रूप में। टेक्निकल रिपोर्ट ओनली डाटा रहेगा, न्यूमेरिकल डाटा। पॉपुलर रिपोर्ट जनरलाइजेशन के लिए बनती है, लोगों तक अपनी बात सिंपल तरीके से कैसे पहुंचे। और इंट्रीम रिपोर्ट जिसको अपने को पर्पसफुली अपने किसी पर्टिकुलर पर्पस को सिद्ध करने के लिए बनाई जाती है, इंट्रीम। लास्ट रिपोर्ट, कोई भी रिसर्च थीसिस बनाने कौन कौन सी चीजें होती है। रिसर्च रिपोर्ट टाइटल पेज हमेशा जरूरी होता है, इसमें आपका रिसर्च का प्रॉब्लम स्टेटमेंट किसके फुलफिलमेंट में बनाई है और कौन उसका ऑर्डर है, कौन है। कंटेंट पेज, कंटेंट पेज में आपके सारे कंटेंट उसके अंदर क्या क्या कंटेंट को आपने इसमें इंक्लूड किया। लिस्ट ऑफ इलस्ट्रेशन, कौन कौन से डायग्राम आपने बनाए, कौन कौन से टेबल बनाई है, कौन कौन से आपने इसमें अदर मेथड वो यूज किए हुए हैं जो कि इलस्ट्रेशन अंदर, अगर कोई पेपर पिक्चर्स दी हुई है, कोई टेबल्स दी हुई है या कोई डायग्राम किए हुए, सारी की सारी लिस्ट। एक्नॉलेजमेंट टू whom to give your credit for your research जरूरी है। Then we will start with the abstract and summary. Abstract and summary, there are different types to write the abstract and summary. आप common summaries भी लिख सकते हो, point wise भी लिख। Now start with the actual report, introduction part. Introduction, when you are writing, it is quite difficult to manage in the introduction and background. कई लोग confusion होता है कि भाई introduction लिख दिया, background क्या होता है, background लिख दिया। Introduction always start with global to general, general to specific। हमेशा वर्ल्ड वाइड कॉमन चीज जो आपका फिनोमिना है, जो भी आपका टॉपिक है, उसको वर्ल्ड वाइड से स्टार्ट कीजिए, कॉमन से स्टार्ट कीजिए, स्पेसिफिक लिखिए उसको। बैकग्राउंड मीन्स यू शुड शो दैट बैकग्राउंड की आपकी जो प्रॉब्लम है पहले भी किसी की प्रॉब्लम रह चुकी है, उसमें उसका ये सॉल्यूशन निकाले हैं। तो अपनी स्टडी के हमेशा बैकग्राउंड लेके चलना पड़ता है। बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी में ये जरूरी होता है कि पिछले पुराने सारे लिटरेचर्स का आपको रेफरेंस देना पड़ता है। ये प्रॉब्लम सिर्फ मैं नहीं ढूंढ के ला रहा हूं, ग्लोबली प्रॉब्लम है, इंडिया लेवल पे भी है, स्टेट लेवल पे भी है ये प्रॉब्लम, एंड दिस प्रॉब्लम इज आल्सो एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, एट माय लेवल। यू शुड प्रोसेस बैकग्राउंड के साथ साथ आपकी नीड ऑफ द स्टडी आ जाए। व्हाई यू आर डूइंग दिस स्टडी, गिव अ जस्टिफिकेशन, स्टेटमेंट रह जाता है, ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं, ऑब्जेक्टिव्स के बाद में आपके डेफिनेशंस आ जाती है, कंसेप्चुअल डेफिनेशंस आ जाती हैं। उसके बाद में आप अगर यूटिलाइज करना चाहें तो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क आ जाते हैं। सेकंड चैप्टर फिल प्रोसेस, दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट चैप्टर। सेकंड चैप्टर रिव्यू ऑफ लिटरेचर। थर्ड चैप्टर इज मेथोडोलॉजी। मेथोडोलॉजी वेरी मच इंपॉर्टेंट टू, इट इज द कोर हार्ट ऑफ द स्टडी। Methodology and methods, you should always define your approach, your design, your sampling. Then sampling criteria, inclusion criteria, exclusion criteria. If
you're further proceeding with that, then method of data collection and tools. These all things should be clarified very much in methodology. Then the fourth chapter will be analysis of the data, the finding analysis. Write your all table and depict your table. Make a diagram and give the explanation of the diagram. Then the fifth chapter, your description, your conclusion, and major findings. Then you write your own interpretation, what you learned from this, what you think about the study, what finding you got, and compare with other things. Compare with other studies, discussion method. Then with the whole study, what you think it is in your conclusion. How you will recommend your study for further future. How it is helpful for other different section of math. How you will recommend for future research. Then lastly, your references, your bibliography. I will tell you what is the difference between references and bibliography. References, which are the studies with the references you are directly involving in your research, you are writing in your research. You are directly taking content from there, it is research. Bibliography, you have checked ample of the websites, you have checked ample of the books. That is your bibliography, but you will not take it. It is not compulsory bibliography कि आप हर कंटेंट उसमें से ले रहे हो, आपने कितनी बुक चेक करी, सब चीज चेक करी, बिब्लियोग्राफी में लिख सकते हो, बट रेफरेंस में वही चीजें लिखनी है जो आपने लिखी. Then lastly your annexes or appendix, इसमें आपका टूल डिस्क्रिप्शन होता है, सारे परमिशन लेटर होते हैं, मार्क्स. When you are writing any, this is report and publication. If you are doing anything in publication, you are preparing a manuscript for that. Then you define your problem, approach your research design, and do a field. Go for data analysis, write the interpretation, conclusion, and recommendation. Prepare a report that may be an oral presentation, reading by the report by the other client, and research follow. This is the particular algorithm which we are using for report presentation and presentation. Now, one more thing and last we will discuss the Emerald method. Why I am taking this Emerald method? Because now the most of the things, most of the manuscripts and index journal, they are asking them. I for introduction, first always start with the title or the abstract keyword. You should be an attractive title with a fashionable word, descriptive information that readers search in an article. अपने स्टेटमेंट को कंसाइज वर्ड में, जितने छोटे वर्ड्स में आप लिख सकते, जितने कम वर्ड में लिख सकते, अट्रैक्टिव वे में टाइटल बनाइए. आपका नाम ऑर्डर के रूप में वहां लिखिए. एब्स्ट्रैक्ट की वर्ड लिमिट होती है, बड़े बड़े जिसमें 200 ही एब्स्ट्रैक्ट में यूज करते हैं. एक कंटिन्यूअस पेज में आप एब्स्ट्रैक्ट नॉट मोर देन 8 to 10. Simply write a one line for introduction, one line for your statement, one line for objective. Then what the methodology use for two lines. Then your result, very important, and what is your conclusion and discussion. This is very important. What novelty effect you have in your research that should come in that. Then only publication house critical for introduction. Next, Emerald I for introduction. What is concept of the project? How does it fit with one research on a topic? And what is the research question? Will come in the introduction. Method, what did the author do? Answer the research question. Design कौन सी use की, approach कौन सी use की, setting कौन सी use की, sampling technique कौन सी use की, sampling approach कौन सी use की, sampling criteria क्या रहा, how you prepared a tool, and how you plan for the data analysis. Methodology आएगी. Methodology जितनी concise और clear है, उतने ही publication acceptance के chance बढ़े. Then the result. Result में always use a right test or what we can say inferential analysis, because there are great chances to raise very lot of the queries. कि आपने ये use किया, ये use नहीं किया, ये test किया. You should have justification. Preposition use कर लो, normal data टाइप स्क्वायर यूज कर लो, descriptive meaning तो mostly आप describe define कर सकते हो, but always result should be understandable and concise. Then the very important जहाँ पे problem start हो जाती है discussion and conclusion, because most of Indian research, we can say nursing research में यहाँ problem आती है, accept नहीं होती है, वो problem होती है discussion. Because
We have done a lot of things. We have done a hard work with our research, but अपना डिस्कशन इतना पुअर होता है कि अपन कभी भी अपनी बात को इंटरप्रेट नहीं कर पाते हैं. What is significant in our project लिख नहीं पाते कि अपने वर्ड में लिखना होता है, अपन उसकी सिग्निफिकेंस नहीं लिख पाते. How does it fit with the else is known about this topic? कभी भी अपन उसको कंपेयर नहीं कर पाते सही रिसर्च के साथ, सही इंटरप्रेट नहीं कर पाते. यही कारण होता है कि हमेशा पब्लिकेशन हाउस पूछता है कि भाई आपने क्या नया किया है. ऐसे तो मेरे पास 100 रिसर्च पड़ी हुई है जो आपने टॉपिक. दिस इज वन ऑफ द रेप्लिकेशन ऑफ रिसर्च. व्हाट इज न्यू इन रिसर्च? मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि जब भी कोई चीज करते हैं, कोई भी एनालिसिस कर रहे होते हैं, कोई भी चीजें देख रहे होते हैं, ये चीज हमेशा ध्यान में रखी जाती है कि ये रिसर्च मैंने रेप्लिकेटिव रिसर्च की है, पर इसमें मेरे को नई फाइंडिंग क्या मिली है, नोवेलिटी फैक्ट क्या है. So you have to do work on your discussion and conclusion. References, whatever the material and author you have cited, write in a particular references. Always give a credit if you have taken something from some person. अगर आपने कहीं से भी कोई भी चीज ली है, उस व्यक्ति को उसका क्रेडिट मिलना चाहिए, उसका रेफरेंस के नाम. So this is Emerald method mostly used. So thanks a lot. With that, I know that the 1 hour is not complete with that because it is a long topic to call analysis. But I don't know what I've done. I've done justice with you with the topic or not because I am waiting for your feedback. So this is my completed from my side. Thank you, sir. Students, it's open session for you all. Is there any doubt, any questions, any queries? And please discuss with sir. Yeah, most welcome, most welcome. I'm always ready to interact with that student. नमस्कार सर, नमस्कार. Anyone is there to ask anything from the audience side? Thank you, sir, for your beautiful presentation, sir. I think no more doubts from the student side. No, there is no understanding or there is less only. Obviously, they understand. That's why we found out, sir. Because already we have opened the session, so if there are any questions will arise, they will definitely will ask you. Thank you so much, sir, for joining us in this session. Thank you very much, ma'am. Give me a feedback afterwards, no problem, ma'am. Yes, sir, definitely. Okay, thank you, Thank you, sir. Thank you, audience. Also, we will connect again.